हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। आज हम अपना 50 डेज 50 मॉक सीरीज में मॉक 12 लगाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 11 मॉक किए हैं, तो वो मैंने शेयर भी किए हैं आपके साथ। आप देख सकते हो। कल का जो ऑलिव बोर्ड का मॉक था वो भी मैंने अटेम्प्ट किया था, कल आपके साथ शेयर किया है। उसमें मेरे 132 कुछ मार्क्स बने हैं। आज उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो मैं ट्राई करता हूँ अगर उसका मैथ्स का सॉल्यूशन पूरा करा के दे सकूँ आपको। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ यही अपना ही एक चैनल है जिस पे ये 50 डेज 50 मॉक सीरीज चल रही है ना। CGL Tier 1 के लिए 2025। इसके अलावा और कोई भी चैनल नहीं है जिस पे कोई आपको सारे के सारे जो मौके वाले बोर्ड के वो करा रहा हो। ठीक। तो अगर आप अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हो तो आई एम हैप्पी टू हेल्प। प्लीज मेरे चैनल से जुड़िए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। GS सेक्शन पहले। A 12-year-old is found to be working in a factory। ठीक है, which of the article is violated? LC 22, 23, 24, L और C। ठीक है, LC 24 है। Financing for micro, small and medium enterprises are predominantly done by। नाबार्ड तो होगा नहीं, है एग्रीकल्चर के लिए होता है। PFRDA पता नहीं, फिर भी सिक्योरिटी वगैरह का है ये। FSDC क्या है? फिर भी पता नहीं, छोड़ो। Which of the following festivals is associated with तेलंगाना? शायद गुड़ी पड़वा है। कौन सा इनकरेक्ट है मनसबदार से? The term refers to individual who holds a mansab, meaning position of rank. Rank and salary were determined by numerical value called iktas। Hmm. Rank and salary were determined by a numerical value called iktas। ये गलत है शायद। पोटेशियम K2SO4 होता है। The term tea is related to golf, boxing, billiards, golf। शायद गोल्फ से रिलेटेड है। Which of the following, which among the following was an Indian musician credited with popularizing the Shehnai uh, subcontinent by instrument of oboe class? Shehnai रवि शंकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है शायद शेनाई तो। कामेज पीक उत्तराखंड सिक्किम मेघालय। कामेज उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है या में तुक्का लगा रहे हैं। ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया लैक इन which of the following belongs to mammal group in animal kingdom? मैमल होते हैं जो एग नहीं देते। फिश एग देती है, स्नेक एग देता है, बैट्स एग देते हैं नहीं। नहीं, नहीं देते। ये यंग वंस को देते हैं जन्म। Who among the following has given the sea floor spreading theory? Sea floor spreading। अल्फ्रेड वीगनर तो नहीं है। मेरी है, मेरी है विग्नी लेमन। लेमन थ्योरी आई थिंक। Tazia, made in numerous forms and types, is an important part of the jazz celebrations। मुहर्रम में निकलते हैं इनके ताजिया। Prices of similar products by different firms being identical। Prices of similar products by different firms। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। Which of the following is the only tripartite organization of the UN? World Intellectual, International Monetary Fund, International Labour, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखो ग्रुप से लग रहा है कि हो सकता है ट्रिपाइटाइट ऑर्गेनाइजेशन यही हो।
IMF या वर्ल्ड बैंक ग्रुप of कोई तो होगा. Who is the author of Our History, Their History, Whose History? The thin life supporting stratum of Earth's surface is called the thin life supporting stratum of Earth's surface. Biosphere जहाँ पे लाइफ है. Sultan Mahmud of Ghazni was a contemporary of which of the following Manjanpadas was monarchical in nature? Monarch, Mallawaji, Assak, Gandhar, Gandhar या तो वज्जी जहाँ तक है. Maxwell's equations are a set of four equations that are related to amount of heat generated, behavior of electromagnetic, impact of gravitation, movement of planets with respect to sun. Set of four equations are related to शायद movement of planet है, पता नहीं, लगाएंगे नहीं इसको, ज़्यादा तुक्के हो जाएंगे फिर. Which of the following article of Indian Constitution powers the president for promulgating ordinances? इनका 123 है. The State Reorganization Act was passed in the year 1956. In which year did the Central Consumer Protection Authority notify? ये नहीं पता. The Financial Commission of India is constituted by the President every dash years to recommend the distribution of financial resources between Union and states. The recommendation of Financial Commission are abiding on the Planning Commission President 5 year. यही है इसका मतलब. Shruti Sadolikar Katkar is renowned, पता नहीं, who won the 2024 Women's Asian Championship Trophy, a biennial हॉकी में वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी. ये शायद इंडिया ही जीती है अपनी. काफी क्वेश्चंस कर दिए यार. एक सेकंड देख लेते हैं जरा. ये तो पक्का है, ये थोड़ा श्योर नहीं हूँ इसमें. ये तो ठीक है, ये इसमें श्योर नहीं हूँ. इसमें श्योर नहीं हूँ ज्यादा. ये तो ठीक है. इसमें ज्यादा श्योर नहीं. ये तो सही है. अच्छा, इसमें ज्यादा श्योर नहीं. 49. श्रुति सरकार छोड़. ठीक है, इतने क्वेश्चंस काफी हैं, 17-18 हो गए हैं. एम्पल मतलब काफी हद तक. इसका ऑपोजिट होगा insufficient. He does a question during the meeting. रेज करना होता है क्वेश्चन. None of the dash pointing towards. एविडेंस को एविडेंसेस नहीं लिखते हैं, एविडेंस ही रहेगा. None of the evidence. None is. None के साथ is आएगा. None of the evidence is pointing. In an unexpected moment, Rajan has been surrounded by the mob. In an unexpected moment, ठीक है, इसका तो कुछ नहीं बनेगा. Rajan has been surrounded by the mob. The mob has surrounded. Has surrounded, ठीक. A person who has an unnatural anxiety about one's own health. Hypochondriac, डरता हो जो अपनी हेल्थ के लिए. क्लोज टेस्ट है, बाद में देखेंगे. गेस्ट ऑफ द गेस्ट, बात करना, स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, ठीक है. मेलिफुलस मतलब कि मेलोडियस. लिविंग इम्प्रेसिव एस्थेटिक. इसका सिनोनिम इधर पे क्या है? सिंगिंग इज इम्प्रेसिव. वोकल लाइन से चैलेंज है. एस्थेटिक रेदर देन मेलो, तो इम्प्रेसिव आएगा. इसका पैसिव वॉइस बनाना है. यू शुड डू दिस टास्क और यू विल बी फायर्ड बाय अस. यू शुड डू दिस टास्क, ठीक है, तो इसका बनेगा दिस टास्क शुड बीन
have been done by you, or you will be fired, or we will fire you. This task, you should do this task. Let this task be done. क्या इजी क्वेश्चन में दिमाग खराब हो रहा है. Let this task, you should do this task. नहीं, this task should be done by you, or we will fire you. ये तो सही लग रहा है. This task should be done. ठीक है. ऐसे अब जबरदस्ती नहीं आएगा. सही है. इनकरेक्ट. रिलायबल सही है, रल्ब सही है, रेडियस की स्पेलिंग गलत है. आर ए होना चाहिए. फॉर्मर मतलब जो पहले आया था, इसका मतलब लेटर जो बाद में आता है. The ashrams used were the centers of knowledge and training as है. इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. एनी को सीधे पढ़ लो. The ashrams were used as the centers of knowledge and training. ये तो बिल्कुल सही लग रहा है. As the ashram knowledge and training were used as the centers of the नहीं. The centers of the ashrams were. अच्छा, the centers of the ashram were used नहीं. The ashram were used as the centers. ठीक है, पहली गलत सही है. If everything goes right, he will be soon forget all about. He will soon forget all about me. He will be नहीं. He will soon बस. If everything goes right, he will soon. ठीक. So abbreviate use of preposition. I just lay in the sun's. बाकी सारी चीजें सही है. यहाँ पे देखना है. I just lay in the sun for a week and did nothing. ठीक है. ड्यूरेशन को टाइम के फॉर से बताते हैं. The video, which has been largely shared over social media, has also accumulated over 14,000 likes. For its release date नहीं, from its, yes, since its, ऐसा कुछ होना चाहिए. for तो गलत है. Every tree grows in it. It is क्यों है ये. इसका मतलब तो it is होता है. It's एफिस्ट्रोफी नहीं होना चाहिए. It's होना चाहिए सीधा. Despair मतलब दुख दर्द पीड़ा. इसका ऑपोजिट एक होप हो जाएगा. इनकरेक्टली डिसिप्लिन की स्पेलिंग सही है. एक्नॉलेज MENT होना चाहिए. ये गलत. The hostages are to be saved from the dangerous situation मतलब रेस्क्यू करना उनको. सम्राट्स डॉग इन अ मैनर. हाँ, सम्राट्स डॉग इन अ मैंजर. जो चीज अपन बचाते हैं दूसरों को, दूसरों से मतलब खुद एंजॉय नहीं कर पा रहे तो दूसरों को भी रोक रहे हैं. ये प्रिवेंटिंग अदर्स थी वो जो भी लिखा है. फैसिनेटिंग मतलब बढ़िया सी चीज कोई. एनचैंटिंग सिनोनिम हो गया इसका. और क्लोज टेस्ट पे आते हैं. ट्रैवलिंग इज एन एक्सिलरेटिंग मतलब की बढ़िया चीज. एक्सिलरेटिंग dash that opens up a world of possibilities. Exhilarating experience. मजेदार experience. It transports us to new landscapes, cultures and perspectives. Broadening our dash. Broadening our कमर थोड़ी. Family नहीं. Horizons. Attitude. Broadening our attitude. हाँ, perspectives and broadening our horizons. Broadening our attitude. शायद हो ये सही. The thrill of exploring unfamiliar places, tasting exotic cuisines, and meeting dash people is unmatched. And meeting diverse people, अलग अलग जगह पे जाओगे diverse people मिलेंगे. Meeting diverse people, smart people तो जरूरी नहीं है ना मिलेगा हर जगह. ठीक, diverse ही आना चाहिए. Each journey we embark upon unravels a tapestry of stories and memories that become a part of our own unique dash, of our own unique narrative. ठीक है. हमें देखोगे टारगेट. और whether it's wandering through bustling cities, streets, or immersing ourselves in our nature's tranquility, travel enriches our souls and fuels our wanderlust, reminding us that the world is an awe-inspiring place to be, awe-inspiring place waiting to be discovered. ठीक. इसमें एक क्वेश्चन है ये 82. इसमें यार क्या आएगा. It opens up a world of possibilities, transport us to new landscape, cultures and perspectives, broadening our attitude. broadening our family तो होगा नहीं. वेस्ट होराइजंस का पता नहीं आना चाहिए या नहीं, पर एटीट्यूड ही ज़्यादा सूटेबल लग रहा है. ठीक है. रीजनिंग देखेंगे आप.
प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड से। ओके, तो माइनस का प्लस 291, माइनस का प्लस बना 1606, मल्टीप्लाई का डिवाइड बना, प्लस का माइनस बना, डिवाइड का मल्टीप्लाई बनेगा। ओके, ये इसको एक बार जाएगा, 5 बचा, 4 बार फिर 6 बचा, इन दोनों को जोड़ दो तो ये 7, ये अपना एक ही से देगा तो 30, 30 और 13 43, माइनस 13 वन इज 13, 13 2 इज 26 प्लस 1 27, 4, लास्ट में 4 एक ही जगह है, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यूनिट डिजिट से काफी है। ठीक है, रेनॉल्ड 18 प्लस 3, क्या 3 प्लस 3 हुआ है? नहीं, तो 20, इधर से पीछे से देखो, 20 प्लस 1 21 हुआ है, 14 प्लस 1 बिल्कुल हुआ है, ए प्लस बी आना चाहिए, बी से स्टार्ट है। ठीक है, 12 प्लस 2 13, और 9, सॉरी 5 प्लस 2 6, अरे अरे, 12 1 13, 5 और 1, ठीक है, तो डी प्लस 1 टी। लो, डिस्कवर, ये देखो डी आई एस है, ये एस आई डी है ना, सी ओ बी का वी ओ सी बन गया। ओके, तो ये बनेगा ए आर टी आई के सी, एक ही जगह पे था इसे तो, 4 लेटर्स। 8 में 2 जोड़ दो 10, 21 में 2 जोड़ दो 23, 13 में 2 15, 17 में 2 19, ठीक है, 6 प्लस 1 7, 19 20 11 12, इसके बाद क्यों आना चाहिए था, ये और हो गया। ठीक है, इसमें मैं बाकी सारी चीज़ें नहीं, पहले इसको देखता हूँ। ये 45 घूमा क्लॉकवाइज, फिर 45 घूमा, फिर 45 घूमा, और 45 घूमना चाहिए, पहले में है, दूसरे में भी है, ठीक है, और अपर वाला शेड होना चाहिए। ठीक, अब इसके लिए ये ऊपर गया, ये नीचे आया। ओके, फिर ये ऊपर गया और ये नीचे आया, और ये ऊपर चला गया, फिर ये इधर आया, ये क्या, ये क्या चीज़ बन रही है, ये ऊपर गया, ट्रायंगल नीचे आया, फिर वो ऊपर गया। चलो, इससे तो समझ आ रहा है कि वो इधर आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला है। इसकी बॉर्डर इमेज, तो इधर पे पीस दिख रहे हैं, एफ सही दिख रहा है, फोर भी सही दिख रहा है, इधर गलत, ओ टी एल ओ के बाद एच के बाद ये गलत 5, ये 5 आई, और ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड गलत। 4 प्लस 3 7, 3 13 3 16, 16 इधर आ रहा है। ठीक है, 25 माइनस 1 24, माइनस 1 23, 22, पी यू आना चाहिए। लो, तो ये क्या मीन करता है? ठीक है, ओके, तो ए परसेंटेज भी मतलब है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, एंड बी इज द स्पाइस ऑफ सी, दोनों में से कौन हस्बैंड वाइफ है ये भी पता नहीं, एंड सी इज द डॉटर, ठीक है, तो ये वाइफ ये हस्बैंड, एंड सी इज द डॉटर ऑफ डी, एंड डी इज द स्पाउस, नहीं, हाँ, डी इज द स्पाउस ऑफ ई, ठीक है, और ई इज द फादर ऑफ एन, तो ये वाई। तो क्या पूछ रहा है, देन व्हाट डज दिस मीन? तो ए के लिए देखो, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, सॉरी यहाँ पे जी था, बिल्कुल है ग्रैंड डॉटर जी की, ए इज द नीस नहीं है, हाँ ठीक है, ए के ही लिए पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। चलो, ऑल रोड्स आर स्ट्रेट, सम रोड्स आर पाथ, नो पाथ, ठीक है, इसके लिए आप मेरी स्लॉक्स की वीडियो देखना, उसमें आपको पता चलेगा, कम से कम लिखने हैं, बिल्कुल बिना लिखने, बिना वेन डायग्राम बनाए क्वेश्चन कर सकते हो ये बड़े आराम से। इधर पे रोड से कनेक्शन, इधर पे पाथ से कनेक्शन, ठीक है, नो स्ट्रीट, स्ट्रीट के पास 100 नहीं है, तो ये गलत पहला वाला। सम रोड्स आर नॉट लाइन, बिल्कुल सही है। सम स्ट्रीट आर पाथ, बिल्कुल सही है, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज।
ठीक है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, 30 मिनट की वीडियो है, उसके बाद आपको स्लॉग्स पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से। इसमें कितना माइनस किया? 11। अच्छा, हो सकता है इसमें माइनस वाली कोई चीज़ नहीं है, इसमें तो कुछ अलग ही चल रहा है। 16 में 11 जोड़ा है यहाँ पे देखो, और क्या यहाँ पे 11 जोड़ा हो गया, ठीक। यहाँ पे भी 11 हो गया, ठीक है। 205 में क्या माइनस करेंगे? 6 5 11 माइनस करेंगे। इधर पे भी माइनस 11 करना चाहिए, 183। और क्या 183 में 11 माइनस करेंगे? 172 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है जी। तो ये अपन को देखना है कि ये कैसा अनलॉक होगा। क्या इधर पे कोई भी नंबर एक दूसरे के कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। तो अपन सिर्फ इतना देखेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करना। इसमें अपन ये देखेंगे, पाँच के पाँच को देखेंगे, पाँच के एडजेसेंट में है 4 और 6, ठीक है। तो ऑपोजिट में नहीं देखना चाहिए। पाँच को देखो, पाँच के ऑपोजिट में 4 आ गया, ये गलत। पाँच के ऑपोजिट में एक है, ये हो सकता है। पाँच के ऑपोजिट में 4, ये गलत। पाँच के ऑपोजिट में 6 नहीं आना चाहिए था, एडजेसेंट था। ठीक है, तो सेकंड वाली सही है बस। 87 is related to 58, 96 is related to 64। हम्म, इधर पे 7 जोड़ा, नहीं 9 जोड़ा, इसमें ना 29 जोड़ा, ठीक है। क्या इसमें 29 जोड़ने से नहीं, 4 में से 6 गया 2, इसमें से ये गया 32। अच्छा, ये और ये दोनों 3 के वो हैं। ओके ओके ओके। तो 3 के मल्टीपल है ये। तो एक नंबर है कोई भी, उसी में से उसका डिवाइड बाय 3 हटा के 16 आना चाहिए। तो ये तो बना फिर 24 है ऐसा। ठीक है, 24 का 3 से डिवाइड करो 8, और 24 माइनस 8 16, ठीक। तो ओके, इसमें चेक करना पड़ेगा कौन सा क्या सही है। 14 × 19 + 3 -18/2, क्या ये 6 दे रहा है? 14 × 19 ही बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है। अगर 14 × 19 ही बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो ये डिवाइड भी नहीं आएगा इधर पे, तो माइनस का लगाओ। 14 - 9 + 3 × 18/2, ये आ गया -5, ये प्लस का 18, ये भी सेट नहीं है। तो फुर्ती वाला होना चाहिए, लेकिन चेक कर लेंगे। 14 + 19 -3 × 18/2, -18। अबे यार, क्या गलत हो रहा है? ओह, फिर से करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। 14 × 19 करेंगे अपन, अगर +3 किया, -18 किया, -2 किया, ये कहीं से 6 नहीं देगा। क्वेश्चन पूरा पढ़े क्या? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही तो है। 14 का डिवाइड भी नहीं होगा 19 से। 14 - 19 + 3 × 18/2, 2 से ये 6 बार 6 3 18, ये -1 14 -1, क्या है ये? 15 -3 × 18/2। अबे 9 आएगा ना यहाँ पे, क्या दिमाग चल रहा है? 9 × 3 27, 7 1 -8, ठीक है। इसी वाले से था। 18/2 6 नहीं होता, 9 होता है। पता नहीं क्या दिमाग में चलने लगता है। हम्म, तो परसेंट के बाद मुझे कुछ दिख रहा है जी। परसेंट के बाद जी इधर है, एक ही जगह ओ है। अच्छा, जी के बाद एक जगह इधर पे ओ है, तो इधर पे ए है, फिर एक और ए है। परसेंट के बाद जी ओ ए एल इक्वल्स, ठीक। परसेंट के बाद जी ओ ए एल, यही सूट कर रहा है। फिर से जी ओ ए एल,
ठीक है। एफ है, एफ में +1 15 -2 18 में +2, एफ में +1 हुआ, इधर पे +1 हुआ, 16 +1 17 आएगा। ठीक है। फिर इधर 13 13 है, 15 -2 22 -2 18 +2 1 +2 तो 11 +2 13, फिर से 13 आना चाहिए। ठीक। 9 से 49, 9 -2 का स्क्वायर, 4 -2 का स्क्वायर, 15 -2 13 का स्क्वायर 169। क्यू सही है, इधर पे कैपिटल एन होना चाहिए, ये सही है, परसेंटेज का साइन। ठीक है। इधर 7 था, थर्ड वाला सही है। ये पहले इधर था, ऊपर था, राइट में आएगा, राइट में इधर है, इधर है, ये स्क्वायर इधर 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 तो ठीक है, फर्स्ट वाला है फिर। सम बॉक्सेस आर कवर्स, नो कवर इज अ लिड, इन दोनों का रिलेशन है कवर से। ठीक। तो ऑल बॉक्सेस, बॉक्स के पास 50 है, यहाँ पे 100 है, गलत। ऑल लिड्स आर कवर्स, नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं बना सकते हो, ये पूरी मैंने स्लॉप्स की वीडियो में बताया है कैसे करते हैं। ठीक है, नीदर नो रही है। 5 के ऑपोजिट देखो, 1 है 1 है, 6 है 6 है, तो 5 के ऑपोजिट 2। हम्म 86 42 58 16 14 और 4। हम्म इसको छोड़ेंगे अभी। इसको छोड़ो अभी। डायनामिक को जो है लेफ्ट से राइट में अरेंज किया, तो पहले अरेंज कर दो इसे। ए आएगा, सी आएगा, डी आएगा, आई एम एन एस वाई। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द वॉवल अपीयर्स 7 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 1 2 3 4 5 6 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉवल appears after the seventh letter from the left hand? तो वो तो y है। हाँ। which of the following vowel appears after the seventh letter from the right hand, from the left hand? क्या कहना चाह रहा है? ये तो और नहीं समझ पाऊंगा। Hmm. If each letter of the word is arranged from left to right, which of the following vowel appear after the seventh letter from the left hand? क्या है यार ये? छोड़ो, लैंग्वेज ही समझ नहीं आई है। क्या क्या है ये क्वेश्चन? आज तक तो दिखा नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन। आर के बाद टी है, टी के बाद मुझे तो पी दिखा, तो पहली जगह पे पी आना चाहिए। RTPSQ। ठीक है। फिर RTP के बाद फिर से टी, RTPS के बाद क्यू, फिर E, फिर एस, क्यू, फिर से आर। ठीक। 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब नहीं है, 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब नहीं है, 13 का स्क्वायर 13 का क्यूब है। हाँ, तो एक ऐसी लाइन चाहिए और उस पर सर्किल और लाइन चिपकी होनी चाहिए। नहीं नहीं, गैप है। ठीक है, कहीं होनी चाहिए सर्किल और लाइन। हम्म सेकंड वाला नहीं है,
थर्ड वाला नहीं है सर्कल की वजह से। और ठीक, फोर्थ है। कौन से क्वेश्चन बचे हैं रीजनिंग में? ये कौन सा क्वेश्चन किया? 21। 21 के बाद क्या था? ये इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। 21 में क्या था? ये देखो, अगर मैं ये देखूं, ये 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है। अगर इसको 2 से काट दें, पहली बात तो 80 माइनस 30, दिस माइनस दिस, 8 5 13। ये देखो, इन दोनों में 13 13 का फर्क है, तो इसमें 13 जोड़ दो, 64। बस, बाकी ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। इतना पैटर्न मिल गया बाहर, इतना काफ़ी है इसका। ये तो समझ नहीं आ रहा है। फिर इस पे 27। ठीक है, मैं इस पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज आर्क लेंथ इज इतना एंड रेडियस आर इतना। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है हाफ ऑफ एल आर। ठीक है, हाफ ऑफ एल तो में दिया है, आर तो में दिया है 7 टाइम्स 7 3 231। A train passes a station in 1 minute and 2 seconds, and the speed of the train is इतना if the length of the station is इतना। ठीक है, तो then find the time taken by the train to pass an electric pole। ठीक, तो ट्रेन खुद की लेंथ भी कर रही होगी और ये 1350 स्टेशन की भी लेंथ कर रही होगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो हाँ, 60 सेकेंड्स प्लस 62 इंटू 162 इंटू 5/18। 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड चलेंगे। ठीक है, 2 से 9 बार, 2 से 81 बार, फिर 9 से 9 बार, 9 इंटू 9 6 9 18, 558। और फिर इसका मल्टीप्लाई 5 से, 5 से 25, 5 से 22, 5 8 40, 90 7 2 9। इसमें माइनस करो 1350, तो आया 4401। ये आया, ये है ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ अपनी स्पीड से कितना कर लेगी? अभी अपन ने देखा ये क्या था, 18 से ये 9 बार पे गया, 9545, नीचे रख दो 45। 5 से 9 बार, ये 5 से 2 बार, 9 से 16 बार, 16 2 32। ठीक है, इसी क्वेश्चन था, बस आराम से करना है। टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल और दिस एंड दिस, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज देन। तो वो कम होगा किससे? इन दोनों के सम से, 28, और इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा। तो 4 और 28 कहाँ दिख रहा है? एक जगह, तो ये रहा। 14 28 देख के मत मार्क कर देना, इसलिए मिस्टेक हो जाएगी। A boat covers 240 kilometer downstream in 8 hours and 180 kilometer इससे upstream. Find the ratio of the speed of stream upon boat। ठीक है, स्ट्रीम क्या होगी? डाउन स्ट्रीम की स्पीड अपन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड। हाँ, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 30, 240/8 डाउन स्ट्रीम की स्पीड। और ये कितना है? एक बार 12। ठीक, और डिवाइड बाई 2 से कट जाएगा, तो ये होगा 30 + 12। ये है 18, ये है 42। 6 से 3 बार, 6 से 7 बार, 3:7। द वैल्यू ऑफ 12 sin 30, जो कि हाफ होता है, cos 60 भी हाफ होता है, -4 इंटू cos 30, 4 cos 30 √30/3/2, और sin 60 भी यही है। तो ये है 4 से 3 बार, 3 - 3 - 3 0। अच्छा, तो ये देखो क्या बन रहा है। ये बन रहा है 9/8 इंटू 8/7। फिर इसी तरह से बनेगा 7/6, और ऐसे भी फलाना ढिकाना। ये बनेगा 4/3, ये बन रहा है 3/2। अपन देख रहे हैं ये ऐसे से कटा, तो ऑब्वियसली ये कट गया और ये कट गया, तो बचा क्या? 9/2।
बहुत इजी है ये क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल इज एट लीस्ट 30, इज एट लीस्ट 30, मतलब कम से कम 30 होना चाहिए। तो ये तो 30 से कम है, तो इसके ऊपर यहाँ पे बात आएगी। एंड लेस देन 40, तो 16 - 12 ये किया जाता है इसमें। ठीक है, 16 - 12, 4। ठीक, तो ए की वैल्यू पता करनी है जब नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन कब होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, समझ जाओ। तो 9a - 5 इधर के x का कोएफिशिएंट 2a इक्वल टू 7a+3 इधर के y का a+4 इक्वल्स टू 12/13। तो इसको एक बार इसके साथ और इसको एक बार इसके साथ, अरे यार ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो 117a - 65 इक्वल्स टू 24a। एक तो ये इक्वेशन बन रही है इन दोनों को साथ रखने पर, और इन दोनों को रखने पर क्या बन रही है? 91a प्लस का 39 इक्वल्स टू क्या ये है? तो 12a+40। ठीक है, ये अगर 11 प्लस ये होता तो 80 - 1 79a इक्वल्स टू 48। ये हम्म 9 ही आएगा, और एक 9। तो ए की वैल्यू तो बहुत अजीब है, करीब आ रही है बस। क्या कर सकते हैं इधर पे? तो इसको एक काम करो, रहने दो। ओ शिट, यार मैंने इसको पता नहीं क्यों देखा, नो सॉल्यूशन को इन्फिनिट सॉल्यूशन देख लिया। नो सॉल्यूशन में तो होता है बस 9a - 5/2a इज नॉट इक्वल्स टू नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल और इन्फिनिट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, समझ गया। तो 9a - 5/2a इक्वल्स टू 7a+3/a+4। ठीक। तो 9a² प्लस का 36 माइनस का 5a माइनस का 20 इक्वल्स टू 14a² प्लस का 6a प्लस का 6a। ठीक है, 14a², ये 9a इसके पास चला जाएगा तो बचेगा 5a²। ये 5a भी इसी के पास आ जाएगा, बचेगा बनेगा 11 का a। ये भी हटाओ, ये है 16। ये बनेगा क्या? 5a² प्लस 11a माइनस का 16 इक्वल टू 0। 5 80 होता है, और ये 80 कैसे बनेगा? 16 × 5 से। ठीक, तो 5a² प्लस 16 a - 5a - 16, 5 कॉमन हुआ a+16, सॉरी a कॉमन हुआ 5a+16 -1। फिर से होगा 5a+16 इक्वल्स टू 0। तो ए आ गया एक तो 1, और 16/5। बेवजह टाइम वेस्ट हो गया यार इसमें। तो 1 1 तो होगा ही, तुक्का लगा देते हैं अभी 1,3 का। डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर इज इतना, तो रेडियस है 14। वैसे वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू दी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? 2/3 πr³ इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ अ कोन। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 7। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। तो 2/3 से पाई काट दो, 2/3 πr³ 14 × 14 × 14 इक्वल्स टू 1/3, 3 से 3 भी काट दो,
आर स्क्वायर रेडियस ऑफ द कोन, यही तो पता करनी है। और इधर पे 7, 7 से ये गया 2 बार पे, तो स्क्वायर है। एक तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों का 1 2 बाहर आ जाएगा, और दोनों की 7 कॉमन आ जाएंगे। 7 4 28। आफ्टर गिविंग a 50% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ इतना। अगर मार्क प्राइस थी 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हुई 80। तो कॉस्ट प्राइस में वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट हुआ है 16/10 का, तो इसकी वैल्यू अगर 80 दी है, तो ये इसको 5 बार काटेगा, तो सीपी है 50। If the discount is increased by 5%, then find the profit percentage। ठीक है, अगर तुम 20 के बदले 25% दोगे, तो सेलिंग प्राइस अब बात हो रही है 25%, मतलब 75। तो इधर पे प्रॉफिट कितने का है, इंटू 2 कर दो, 100 150 50% का प्रॉफिट। 10 बीटा ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। 3 4 5 12 13 ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289। ये बना 3 12 3 3 4। तो इसकी जरूरत नहीं है। इधर से 3 कॉमन लो, इधर से 3 कॉमन लो, वो गया। तो ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इधर से 3 कॉमन लिया, यहाँ बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, मतलब कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर बनेगी। तो 17 का स्क्वायर 289 अपन 144। कॉट बन गया ना, क्योंकि दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 लोगों के बीच में। सच a manner that if इतने रुपये is added to their shares, the ratios of their shares will become। तो ये हैं कितने, 5 रुपए इसका इसको दिया है, 130 हुआ, 180, और ये हो गया 280। इसमें 280 रुपये जोड़ दो, 00 7 तो ये 3, ये ठीक है इतना हुआ। और ये क्या है, 12 12 8 20। तो ये 20 यूनिट की वैल्यू दी है इतनी। 0 से 0 गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है 600। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लक्ष्मी, ऐसे चीज है, लक्ष्मी और मित्तल। लक्ष्मी और मित्तल, इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 600 का फर्क है, 1 यूनिट का, तो 600 का फर्क है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लक्ष्मी एंड मित्तल, रुको रुको, 8 इंटू 6 4800, 9 इंटू 6 54। इसमें से इनका माइनस भी तो करना पड़ेगा कुछ। इसमें से 100 माइनस कर दो, इसमें से 125 माइनस कर दो, क्योंकि ये जबरदस्ती जोड़ेगा ना। ठीक है, ये 5 ये 7 ये 2 ये 5, इसमें 300 जोड़ो, और ये 275 आ गया, दोनों का डिफरेंस 575। सही था यार ये क्वेश्चन, इसलिए मिस्टेक हो सकती है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस, देखो 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही आएगा। और देखा जाए तो फिर 36 आएगा, 36 का इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 36 आएगा। एक सेकंड, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6 की पावर कुछ भी हो, 6 तो आएगा। तो रुको, ये 2 डिजिट का है ना, तो 56 का करना पड़ेगा स्क्वायर, अगर कर दें तो 25 36 5 से 10 60, 31 36। अभी भी यार वही आ रहा है, 23 3 10 3। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं इसमें, ऐसे नहीं करना होगा इसे। ऑड है तो फिर, तो ये जो 3136 बना है, इसमें 56 का और मल्टीप्लाई कर दो, 636 108 6167 318 7 to 36। अबे ये होगा 216 यार, 1678, 5 इंटू 6 होता है 180। तो इधर पे 16 बच रहा है, रहने दो, बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है आज के क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इतने रुपी रेट पर एनम और इतने रुपये जितना कैलकुलेट दी सम प्रिंसिपल पे, ये दिया है 7 7 बाई 9, ये 7 9 is 63,
63 प्लस 7 इज 70 अब 900 का मतलब है। ठीक है तो इसको ऐसे लिख 7 190। ठीक है दिस और ये है 2 4 बाई 7 7 4 28 28 2 30 ये इसको काटेगा ये इसको काटेगा 3 बार पे ये है 472 इसका मल्टीप्लाई होगा इधर आएगा सर और 7 टाइम पे 21। ठीक है 12 21 12 21 या 12 24 3 2 6 7 into 3 into 4 is 1200 3 into 2 is 6। हाँ ये 1227 आ रहा है कुछ तो गलत है 7 9 is 63 63 प्लस 7 is 70 प्रिंसिपल पे 70/900 किया ये है 7 इंटू 2 होगा 14 14 प्लस 4 होगा 18 ये गलती थी तो ये इधर में 5 आएगा 7 से 7 कट गया 5 4 5 इंटू 2 10 5 3 35 36 तो लास्ट में 60 है पहले ऑप्शन में। और जैसे अभी मैं गलती कर दे रहा हूँ यही चीज होती है अपन सबके साथ एग्जाम में है ना। ऐसा नहीं है कि अपन लगा के आ गए और फिर आपको दिखा रहे हो कैंडिडेट ए रिसीव्ड इतने और वैलिड वोट्स एंड वन बाय मार्जिन इतना। ठीक है अच्छा इसको इतने मिले और इतने के मार्जिन से जीता। ओके 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 तो इफ इतने परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट वर वोट्स इनवैलिड वोट्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ इतने कास्टेड वोट्स 50% of total cast what was the number of votes received by candidate B। ये इसको मिले हैं और जो भी लूजर है उसके अगर एक्स है तो ये जो 8500 है वो उस लूजर से कितना ये 5750 ज्यादा है तो ये 5750 इधर का माइनस करो ठीक है आएगा 50 ये बने 7 7 में से 5 गए 2 तो ये उसके लूजर को मिले होंगे। ठीक है अब जब वो उसे इतने मिले हैं if 50% of the casted votes were invalid out of 50% cast 15,000 में 25 तो होना तो 3/4 बचा है 3 इंटू 4 हो गया 45,000 अपन 4 4 से एक बार 2 बार 5 बार 0 बार इतने होंगे टोटल वोट्स। हम्म एक सेकंड क्या कह रहा था बी को कितने मिले हैं ना वो निकल तो गया था ये फाइंड द टोटल नंबर बिटवीन 13 का स्क्वायर एंड 111 इंक्लूडिंग 13 का स्क्वायर एंड फाइंड द टोटल नंबर्स। अरे मतलब 169 और इतने के बीच में इसमें 9 में से एक गया 8। अच्छा इनको इंक्लूड करना है अरे बढ़िया 9 में से एक गया 8 6 में से एक गया 5 तो इसमें से ये हट चुका है इसमें ये जोड़ दो 51 59। If the volume of a cuboid is hectare and the area of the base of a cuboid is इतने स्क्वायर यूनिट्स मतलब ये है L इंटू बी है 100/8। ठीक है if the volume of a cuboid is if the volume of a cuboid is a v it's a cubics। अच्छा एल भी एच है स्क्वायर एरिया और एल भी है ये तो एच क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन 100 और एक और एक तो ए क्यूब ये होगी इसकी एच। देन फाइंड द हाइट
तो ए क्यूब इंटू 10⁻²। ए एंड बी वर्क करते हैं इतने इतने, ये है 5 इंटू 4 इंटू 7 और कर दो, 20 7 140। इसकी होगी 10 एफिशिएंसी, इसकी होगी 7। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इफ ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो 2 दिन में ये कितना काम कर देंगे? 14। काम कितना कराना है? 140। तो 8 से मल्टीप्लाई करो, या 16 दिन, 8 7 136। स्टार्ट किससे करा रहे थे? बी से। तो 16 दिन के बाद 17वें दिन काम करने आएगा बी, और बी करेगा 7 काम। काम कितना कराना है? 4। तो वो करता है 7 काम एक दिन में। काम कराना कितना है? 4। तो 7 को यहाँ भेजोगे 4। ठीक है, 16 4/7। हद है, हद है। What is the total monthly usage of rice? Monthly usage of rice and wheat in family P, अच्छा in family Q and S together। ये तो हो गया 21, ये हो गया 76, 97 दिख रहा है मुझे। इजी क्वेश्चन था, देख जी रहा था बस। ओके, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब, ठीक ठीक। पहले निकाल लो ये आ क्या रहा है, एक बार इन दोनों का सम, एक बार इन दोनों का डिफरेंस। पहले सम करो 96, डिफरेंस करो 60, सम करो 96, डिफरेंस करो 35 में 5 जोड़ा 40, फिर 21 जोड़ दिया 40 में, तो ये है 26। 2 से 30 बार, 2 से 13 बार। ठीक है, बी क्या है? ये इसको दो देगा 90, 160। 8 में से 2 गया 6, 16, और ये इसको फिर से 160, और इन दोनों का डिफरेंस है 9। तो 70, 70 में 29, ये 38 है। 2 से 8 बार, 2 से 19 बार। ठीक है, तो 1/19 बी की वैल्यू 8/19 माइनस 1/13 ए की वैल्यू 30/13। तो 1/8 माइनस 1/30, 30 - 8 मतलब 22 अपॉन 240। 2 से 11 बार, 2 से 120 बार, 11/120। जरूरी नहीं है एलसीएम को, सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और डिनोमिनेटर को फिर मल्टीप्लाई ही कर देंगे। इन द गिवन फिगर, ये जो एक ट्राइंगल है, एक्स वाई एक टेंजेंट है, तो इसका ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। फाइंड द एंगल दैट इज इक्वल टू क्यू पी आर। तो वो होगा पी आर एक्स। पी आर एक्स यही दिया है, क्यू पी आर के। एक सेकेंड, हाँ क्यू पी आर के तो होगा क्यू आर वाई, वाई आर क्यू, ये सही है। गलती हो जाती है भी हालत में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द, द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंसेस ऑन मंडे एंड फ्राइडे इज 5 hours ऑन ईच डे। ठीक है, इधर पे जो मंडे और फ्राइडे को जो है 5 5 घंटे लगे हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑन मंडे एंड फ्राइडे। अब तुम ये तो हटा ही दोगे, 3 से 8 बार, 3 से 10 बार, 8/10, 8/10 मतलब 4/5। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर अगेंस्ट अ हाउस, ये कोई हाउस है, ये लैडर है, ये है 60, ये है 60, तो ये होगा √3, ये होगा 8, ये होगा 2। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज इतने मीटर अवे। अच्छा, तो 1 की वैल्यू दे दी है 29.5। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर? 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 58 + 1 59 हो गया। The average of 4 turns is the first 1/3 of the sum and the first
term is 1 by 3 of the sum of the remaining terms. अच्छा, सम अपन 4 नंबर्स का एवरेज है ये, और ऊपर भी कितने टर्म्स है, एक्स वाई जेड है, और एक मान लो ए। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1/3 ऑफ द सम ऑफ ये है, मतलब एक्स वाई प्लस ए का 1/3। तो इसमें ये जोड़ा तो ये तो बन गया पूरा का पूरा 4 टाइम्स ऑफ 4 से 4 गया, नीचे 3 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 90 आ रहा है इस हिसाब से। फाइंड दी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को इसका थर्ड बोला गया है, तो 30। ये बढ़िया सही क्वेश्चन था, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था। If the circumradius of an equilateral triangle is इतना, एक circumradius equilateral triangle की क्या होती है, circumradius होती है 1/2 या 2 root 3 a, 1/2 root 2 अपन 1/√2 a, √2 होता है यार, शायद 3 होता है, होगी कंफ्यूजन पूरी। सर्कम अगर इतनी है, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस, तो उधर से साइड पता चलेगी। यार मुझे इधर पे हो रही है कंफ्यूजन, 1/2√2 होता है, 1/2√3 होता है। चलो अगर ये ले लेंगे, तो अगर ये 12 दिया है तो ये तुम्हारा आया 12√2, और सर्कम रेडियस क्या होती है, 2√2, 6 आएगा। अगर यही चीज 3 हुई होती, चलो ठीक है, 6 ही आंसर है जहाँ तक है, उसी का हाफ हो जाता है यार, ये भी बात सही थी। क्यों मार्क नहीं हो रहा, वैसे ही आज बहुत समय वेस्ट हो गया। 63rd, ये कौन सा क्वेश्चन है, 58, 58 में पता नहीं क्या हेडेक हो रही है। और रीजनिंग में 22 तो समझ ही नहीं आया था क्या कह रहा था। ये इसमें कह रहा है द ईच लेटर ऑफ द वर्ड इज अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देन द इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉवल अपीयर्स आफ्टर द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो वो वाई बच रहा था, वाई थोड़ी वॉवल है। अच्छा, वाई के पहले आ रहा था एस, और एस के बाद कौन सा एक वॉवल आता है, यू आता है, इनमें से कोई नहीं आता है। उधर पे देखने को नहीं कह रहा, तो कह रहा था इवेंचुअली कौन सा आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनल चीज है, देखा करो लास्ट में, बहुत तेज दिमाग चल जाता है, कुछ कुछ चीजें बड़े आराम से हो जाती है। बस इधर समझ नहीं आ रहा क्या चीज करनी है। चलिए 6 ही देगा यार। 23, 669, 9। और मॉडरेट लेवल का मॉक है ये काफी। 63, 58, 50, 6 की पावर 1 हो तो 6, 2 है तो 6। इधर पे डिवाइड अगर इसको सीधे करेगा तो 10 रिमाइंडर आ रहा है, हिसाब से 100 आना चाहिए। 23 into 4 is 92। क्या सोच सकते हैं इसमें, खूब सारे टेंस बन रहे हैं उस हिसाब से। 23 into 2 is 46, बहुत सारे टेंस बन गए, तो लास्ट में 100 का डिवाइड 23 से करेंगे तो 92 के हिसाब से 8 रिमाइंडर आना चाहिए।
आठ रिमाइंडर कहीं नहीं लिखा है इधर पे। तो वो कर दिया 60 कर दिया 246 46 369। क्या किया जाए इसमें, तुक्का लगा दें क्या, एक फोर आठ का, आठ के हिसाब से दिख रहा है मुझे बस। देखते हैं क्या है इस मॉक का सीन। 161.5। चलो मार्क्स तो अच्छे आए हैं काफी। खुश हूँ मैं इन मार्क्स में तो, क्योंकि जैसी मेरी जीएस है उसके हिसाब से 24 मार्क्स आए हैं। ठीक है मेरे लिए ये मार्क्स। यार मेरे ना, मतलब अगर भाई 20 प्लस कहानी अगर पहुंच जाएगी जीएस में, तो पक्की बात है मेरे 155 प्लस 160 आने ही है। और श्योर रहता है, क्योंकि जीएस अगर ठीक होगी तो मेरे को बाकी चीज़ों में ठीक ठाक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो आज का रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, 47.5 काफ़ी बढ़िया स्कोर है। इसमें परसेंटाइल देख रहे हो, 58। पता नहीं कहाँ से इसकी परसेंटाइल चलती है कॉलेज बोर्ड की, इतने अच्छे स्कोर पे भी। और इधर पे 45 था, दो क्वेश्चन गलत हो गए हैं इधर, दो क्वेश्चन गलत हो गए हैं इधर। इधर तो चलो चार है, वो कोई नहीं। ठीक है, ओवरऑल स्कोर अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग तो। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या गलत हुआ है रीजनिंग में। ए इज द नीस ऑफ जी, जी सबसे ऊपर था और ये इधर था। यार नीस थोड़ी हो सकती है जी। अच्छा जी इस तरह, अरे shit। ठीक है, मेरी सिली मिस्टेक है, समझ गया मैं क्या करना था। मैंने उसको ग्रैंड फादर की बगल में लिख दिया था जी को, जबकि वो नीचे आना था, उसको थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, है ना। क्योंकि जी ई का बेटा था या बेटी जो भी थी, उसको नीचे आना चाहिए था सेकंड वाली रो में। तो उसका वो भाई या बहन लग रहा था जी, ए के फादर मदर का, तो वो ऑब्वियसली है ए नीज होने वाला था। इधर पे ये गलत है, ये तो गलत होना ही था, पता नहीं क्यों। ए वन अपन ए टू इक्वल टू बी वन अपन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपन सी टू, ये तो फिगर आउट कर लिया था पहले। एक दो बार तो थोड़ी कंफ्यूजन हुई, उसके बाद कर लिया था पर। अच्छा इधर पे ए बाय फोर, इधर पे भी मैंने शायद टू ए लिख दिया था क्या। ठीक है, इसमें टाइम देखो कितना लगा है, 267। जबकि वो है क्या, 9a-5 अपॉन 2a इक्वल्स टू 7a+3 अपॉन a+4। इधर ही कुछ गलती कर दी थी मैंने। 9a into a, 9a² माइनस का, सॉरी माइनस नहीं, प्लस का 36a माइनस का 5 है। ये 36 में मैंने ए नहीं लिखा था, याद आ गया, करने करने के साथ समझ आ गया। -20 इक्वल्स टू 7×2 = 14 a² प्लस का 6। तो ये क्या बचेगा, प्लस का 21 है, 31 है। 5a -12 9 36। ये इधर गया, 5a² बचेगा। ये इधर आएगा, क्या बनेगा, a²। ठीक है, सही है। 5a² माइनस का 31 है, प्लस का ही है, तो माइनस का 25a² प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो, a² -5 है प्लस 4, वही बन गया जो सॉल्यूशन में
इसमें मिस्टेक कर दी थी। ये 2 मार्क्स बेवजह के चले गए। और इसमें इसकी पावर 126, तो 23 से 2 टाइम्स 46, 10 बच रहा है। तो 1 क्यों लिख रहे हैं इसे? अच्छा, ये पूरे ही नंबर को अगर 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो 1 की फिर पावर चाहे कुछ भी हो वो 1 ही बचेगा। ये 5 मार्क्स इधर, रीजनिंग में 2.5 मार्क्स इधर, 7.5 मार्क्स। इंग्लिश में क्या है? मेलीफ्लुअस रेदर देन मेलो, एथलेटिक देन मेलो, मेलो प्लेजेंटली स्मूथ। चलो ये तो मुझे याद नहीं था, इसके नहीं जोड़ेंगे। होराइजन्स ये भी समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, इसमें 7.5 मार्क्स ही है। जो 2 क्वेश्चन मैथ्स में और 1 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हुआ वो जोड़ लो तो 168 आने चाहिए थे, जो सही स्कोर होना चाहिए था ये। ठीक है, जो भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस से कोई भी वैल्यू मिलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और सिलॉग्स की वीडियो आप मेरी देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रेटजी देख सकते हो। 1 वीक की मैंने शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी डाली है अगर स्कोर स्टक हो गया हो उसके लिए, और लॉन्ग टर्म तो डाली ही है सीजीएल के लिए। और वो सीजी एसएससी के सारे एग्जाम्स में काम आ सकती है, दोनों चीज़ें आपको काफ़ी हद तक। और जिस तरह से मैं मॉक अटेम्प्ट करता हूँ आपको पता ही होगा। आई कैन से जो भी बहुत ही कम लोग जेन्युइनली तरीके से मॉक अटेम्प्ट करके बताते हैं, और मैं उनमें से एक हूँ। सिर्फ मैं हूँ ये नहीं बोलता, मैं उनमें से एक हूँ, है ना? तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। क्या करके? सिर्फ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और मुझसे जुड़े रहें। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। हमारा टारगेट है सीजीएल टीयर 1 में पूरी कोशिश करनी है 160 प्लस लाने की, है ना? ये स्कोर सबसे बेस्ट है 160 प्लस सीजीएल के लिए। और इससे ऊपर आ रहे हैं तो वो तो सारी बढ़िया चीज़ ही है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।